तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। मैं साईं से आपको मिलने नहीं दे सकता। सिर्फ एक नजर देखना, आप कहेंगे मैं आपके पैर पड़ जाऊंगी। लेकिन अरे बीबी सही, ये क्या कर रही हैं आप? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं खामोशी से चली जाऊंगी ना। दुआ मुझे जहर नहीं दे सकती। अगर दुआ ने तुम्हें जहर नहीं दिया तो फिर किसने दिया है, बताओ। सही कह रहे हैं, तो उन्होंने सोचा आप पहले ही सामान समेट के निकल लेते हैं। अब आपके मरने का इंतजार करेंगी कि कब आपके मरने की खबर आए और वो अपनी इद्दत पूरी करके सरफराज से शादी करें। ज्वाला बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, रहने दो उसे लॉकअप में। तुम्हारी जान भी जा सकती थी। रानी तो चली गई है बाबा साईं। अभी पूरी तरह ठीक थोड़ी हुए हैं आप। आज मैं यहीं रह जाती हूँ। फिर आ गई तुम? आपने इसे घुसने कैसे दिया अंदर? चुप हो जाओ फिजा। क्यों क्यों चुप कर जाऊं मैं? चलो बस मैं ऑफिस वापस। तो अम्मा से मिलने गई थी। अगर अम्मा से मिलने गई थी तो फिर ये सब क्या है? इस सबूत के बाद भी झूठ बोलोगी मुझसे? इनका थोड़ा सा एक मसला होता है। अमीर तो ये होते हैं लेकिन उसके साथ साथ थोड़े से गधे भी होते हैं। इनकम टैक्स से बचने के लिए सारा कुछ जो है अपनी बीवी के नाम कर देते। अब जब बीवी मेरी तो पैसा भी मेरा। कौन सा और किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? और दूसरों से तारीफें करवाने की। ये क्या तरीका है तुम्हारा भाभी से बात करने का? आपको तो ना हमारे ही तौर तरीके नजर आते हैं। ये नजर नहीं आता कि इसके सुघरापे की तारीफें करते हुए कहाँ चली गई थी हम सबको छोड़? इसी बात से रोकता था उसे कि कम नस्ल और कम हैसियत इंसान कभी आपका मुखलिस नहीं होता। कि सरफराज को आपने भेजा था। इतनी टेंशन में भी इतना दिमाग चला रही हो तुम? उसे मैंने नहीं भेजा है, वो तुम्हारा आशिक है, तुम्हारी करतूतों की वजह से तुम्हारे पीछे। मेरा क्या कसूर है इसमें? बस उसे कह रहा था कि मैंने फिजा को डिवोर्स दे दी है, अब तुम भी नौशर्मा से डिवोर्स ले लो ताकि हम दोनों एक हो जाएं। उसने मुझे अपनों के सामने रुसवा किया। उसका तो हिसाब मैं लूंगा अच्छे तरीके से, उसे बर्बाद करके। अच्छा खेल रहे हो, बस इसी तरह अपनी परफॉर्मेंस
جب نوشیروان کو سارا حقیقت معلوم ہو جاتا ہے کہ کشمالہ بیگم نے آج تک مجھ سے جتنی بھی باتیں کہی ہے نا وہ سراسر جھوٹ تھی، بلکہ وہ تو مجھ کو دعا کے خلاف کرنا چاہتی تھی۔ اب نوشیروان بھی اپنی کی پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہے، کیونکہ اب اس کو بھی اسی بات کا احساس ہو چکا ہے دعا ایک اچھی اور وفادار لڑکی ہے، بلکہ وہ اپنی بہن کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ اور دوسری طرف سرفراز جو اس کو ہر وقت ٹارچر کرتا رہتا ہے، اس لیے اب نوشیروان فوراً اپنے گھر جا کر کشمالہ بیگم سے کہہ دے گا کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، کیوں کر رہے ہو تم اتنا سب کچھ، اور کیوں چاہتے ہو کہ میں اور دعا الگ ہو جاؤں۔ تب کشمالہ بیگم بھی رو کر کہہ دے گی کہ میں تم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نوشیروان آگے سے کہہ دے گا کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے محبت کرنے کا جو میرے دل میں دعا کے لیے بدگمانیاں پیدا کر رہے ہو، یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں کشمالہ بیگم۔ نوشیروان کشمالہ بیگم کے سامنے دعا سے معافی مانگے گا اور اس سے کہہ دے گا کہ اب مجھ کو سب کچھ سچ سچ پتہ چل چکا ہے اور مجھے اسی بات کا بھی احساس ہو چکا ہے کہ تم کتنی مجبور تھی۔ نوشیروان تو اپنی ماں باپ کے سامنے جا کر کہہ دے گا کہ بابا سائی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ نوشیروان سب کے سامنے کہہ دے گا کہ میں کشمالہ کو طلاق دیتا ہوں کیونکہ اس نے تو میرا زندگی عذاب بنا رکھا ہے اور میری زندگی سے سکون ختم کر دیا ہے اس نے۔ جب نوشیروان کو سارا حقیقت معلوم ہو جاتا ہے کہ کشمالہ بیگم نے آج تک مجھ سے جتنی بھی باتیں کہی ہے نا وہ سراسر جھوٹ تھی، بلکہ وہ تو مجھ کو دعا کے خلاف کرنا چاہتی تھی۔ اب نوشیروان بھی اپنی کی پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہے، کیونکہ اب اس کو بھی اسی بات کا احساس ہو چکا ہے دعا ایک اچھی اور وفادار لڑکی ہے، بلکہ وہ اپنی بہن کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ اور دوسری طرف سرفراز جو اس کو ہر وقت ٹارچر کرتا رہتا ہے، اس لیے اب نوشیروان فوراً اپنے گھر جا کر کشمالہ بیگم سے کہہ دے گا کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، کیوں کر رہے ہو تم اتنا سب کچھ، اور کیوں چاہتے ہو کہ میں اور دعا الگ ہو جاؤں۔ تب کشمالہ بیگم بھی رو کر کہہ دے گی کہ میں تم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نوشیروان آگے سے کہہ دے گا کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے محبت کرنے کا جو میرے دل میں دعا کے لیے بدگمانیاں پیدا کر رہے ہو، یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں کشمالہ بیگم۔ نوشیروان کشمالہ بیگم کے سامنے دعا سے معافی مانگے گا اور اس سے کہہ دے گا کہ اب مجھ کو سب کچھ سچ سچ پتہ چل چکا ہے اور مجھے اسی بات کا بھی احساس ہو چکا ہے کہ تم کتنی مجبور تھی۔ نوشیروان تو اپنی ماں باپ کے سامنے جا کر کہہ دے گا کہ بابا سائی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ نوشیروان سب کے سامنے کہہ دے گا کہ میں کشمالہ کو طلاق دیتا ہوں کیونکہ اس نے تو میرا زندگی عذاب بنا رکھا ہے اور میری زندگی سے سکون ختم کر دیا ہے اس نے۔ جب نوشیروان کو سارا حقیقت معلوم ہو جاتا ہے کہ کشمالہ بیگم نے آج تک مجھ سے جتنی بھی باتیں کہی ہے نا وہ سراسر جھوٹ تھی، بلکہ وہ تو مجھ کو دعا کے خلاف کرنا چاہتی تھی۔ اب نوشیروان بھی اپنی کی پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہے، کیونکہ اب اس کو بھی اسی بات کا احساس ہو چکا ہے دعا ایک اچھی اور وفادار لڑکی ہے، بلکہ وہ اپنی بہن کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ اور دوسری طرف سرفراز جو اس کو ہر وقت ٹارچر کرتا رہتا ہے، اس لیے اب نوشیروان فوراً اپنے گھر جا کر کشمالہ بیگم سے کہہ دے گا کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، کیوں کر رہے ہو تم اتنا سب کچھ، اور کیوں چاہتے ہو کہ میں اور دعا الگ ہو جاؤں۔ تب کشمالہ بیگم بھی رو کر کہہ دے گی کہ میں تم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نوشیروان آگے سے کہہ دے گا کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے محبت کرنے کا جو میرے دل میں دعا کے لیے بدگمانیاں پیدا کر رہے ہو، یہ بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں کشمالہ بیگم۔ نوشیروان کشمالہ بیگم کے سامنے دعا سے معافی مانگے گا اور اس سے کہہ دے گا کہ اب مجھ کو سب کچھ سچ سچ پتہ چل چکا ہے اور مجھے اسی بات کا بھی احساس ہو چکا ہے کہ تم کتنی مجبور تھی۔ نوشیروان تو اپنی ماں باپ کے سامنے جا کر کہہ دے گا کہ بابا سائی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ نوشیروان سب کے سامنے کہہ دے گا کہ میں کشمالہ کو طلاق دیتا ہوں کیونکہ اس نے تو
मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून ख़त्म कर दिया है उसने। जब नौशरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है, इसलिए अब नौशरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है, इसलिए अब नौशरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है, इसलिए अब नौशरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो
मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून ख़त्म कर दिया है उसने। जब नौशरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है, इसलिए अब नौशरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशरवान तो अपनी माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है, इसलिए अब नौशरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशरवान तो अपनी माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है, इसलिए अब नौशरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशरवान तो अपनी माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने।
जब नौशेरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशेरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है, इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपनी माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशेरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशेरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशेरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है, इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपनी माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशेरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशेरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशेरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है, इसलिए अब नौशेरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशेरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशेरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशेरवान तो अपनी माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशेरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ क्योंकि उसने तो
मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून ख़त्म कर दिया है उसने। जब नौशरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशरवान तो अपनी माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशरवान तो अपनी माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशरवान तो अपनी माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो
मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून ख़त्म कर दिया है उसने। जब नौशरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है, इसलिए अब नौशरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है, इसलिए अब नौशरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है, इसलिए अब नौशरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशरवान तो अपने माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो
मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून ख़त्म कर दिया है उसने। जब नौशरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है, इसलिए अब नौशरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशरवान तो अपनी माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है, इसलिए अब नौशरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशरवान तो अपनी माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है, इसलिए अब नौशरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशरवान तो अपनी माँ बाप के सामने जाकर कह देगा कि बाबा साई मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। नौशरवान सबके सामने कह देगा कि मैं कशमाला को तलाक देता हूँ, क्योंकि उसने तो
मेरा जिंदगी अजाब बना रखा है और मेरी जिंदगी से सुकून खत्म कर दिया है उसने। जब नौशरवान को सारा हकीकत मालूम हो जाता है कि कशमाला बेगम ने आज तक मुझसे जितनी भी बातें कही है ना वो सरासर झूठ थी, बल्कि वो तो मुझको दुआ के खिलाफ करना चाहती थी। अब नौशरवान भी अपनी की पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि अब उसको भी इसी बात का एहसास हो चुका है दुआ एक अच्छी और वफादार लड़की है, बल्कि वो अपनी बहन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। और दूसरी तरफ सरफराज जो उसको हर वक्त टार्चर करता रहता है। इसलिए अब नौशरवान फौरन अपने घर जाकर कशमाला बेगम से कह देगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्यों कर रहे हो तुम इतना सब कुछ और क्यों चाहते हो कि मैं और दुआ अलग हो जाऊं। तब कशमाला बेगम भी रोकर कह देगी कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। नौशरवान आगे से कह देगा कि ये भी कोई तरीका है मोहब्बत करने का, जो मेरे दिल में दुआ के लिए बदगुमानियां पैदा कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कशमाला बेगम। नौशरवान कशमाला बेगम के सामने दुआ से माफी मांगेगा और उससे कह देगा कि अब मुझको सब कुछ सच सच पता चल चुका है और मुझे इसी बात का भी एहसास हो चुका है कि तुम कितनी मजबूर थी। नौशरवान तो अपने माँ बाप के सामने